Hello students, in previous video we have studied about the sine inverse sin x, means how we can find the value of sine inverse sin x, or you can say the value of sine inverse sin x equals to x for all x belongs to minus as 90 to 90. Got it? Actually ये वाली बात हम लोगों ने कर ली थी. उसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि जब जो x है इस रेंज से बाहर जाता है तो हम दो सिनेरियो क्रिएट करते हैं. एक मैंने बताया था आपको पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, 5 पाई माइनस एक्स वाला सिनेरियो बताया था. एक हम लोगों ने किया था x माइनस 2 पाई, x माइनस 4 पाई, x माइनस 6 पाई. अंडरस्टैंड? अच्छा, बात आती है कि ये तो बात हो गई सारी पॉजिटिव एंगल्स के लिए. तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में यदि मैं तुमसे कहूं कि साइन एक्स लिखा हुआ है तो साइन एक्स साइन पाई माइनस एक्स यदि सॉल्व करोगे तब भी साइन एक्स आएगा. और मैं आपसे कहूं कि साइन ऑफ एक्स माइनस 2 पाई सॉल्व करोगे तब भी ये साइन एक्स आएगा. दैट इज द रीजन वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस 2 पाई. फिर हम लोग चेक करते थे कि जो फैक्टर x माइनस 2 पाई है जो भी कैलकुलेट होने के बाद आता था वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा, तब हम उसको x के इक्विवेलेंट रख देंगे. मीन्स साइन इनवर्स साइन x समटाइम इक्वल्स टू x, समटाइम इट इज इक्वल्स टू पाई माइनस x, समटाइम इट इज इक्वल्स टू पाई माइनस sorry 3 pi minus x, and sometime 5 pi minus x, and sometime x minus 2 pi, sometime x minus 4 pi. Understand? It depends only that the value of this means pi minus x, the value of this becomes within minus pi by 2 to pi by 2. अभी तक का फंडामेंटल यही था और ये सबको समझ में आ गया होगा. अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये कहूं क्या मतलब ये 2 मेथड्स ही हैं. तो देखो अभी हम लोग आगे चलते हैं और मैं आपसे ये कहूं कि मुझे साइन एक्स को लिखना है तो मेरे पास और क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं साइन एक्स को लिखने के. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात है, मैं ऐसा तुमसे क्यों बोलूं साइन एक्स को लिखना है. मैं ये कहूं कि सपोज साइन इनवर्स साइन ऑफ -5 फाइंड करना है, तब आप कैसे फाइंड करोगे? ये वाली बात बतानी. मीन्स अब जो एंगल है मेरा वो कैसा हो गया, -5 हो गया. ये अभी मेरे पास जो सिनेरियो थे वो क्या थे, वो मेरे पास ये थे कि भाई पाई माइनस एक्स रखूंगा मैं या फिर x माइनस 2 पाई रखूंगा. इन दोनों सिनेरियो के अलावा और कोई तो रीजन था नहीं. अच्छा, मैं यदि पाई माइनस एक्स रखूंगा तो ये तो पाई प्लस 5 की कैटेगरी में चला जाएगा, यस और नो. और यहां मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये -5 माइनस 2 पाई कैटेगरी में चला जाएगा. मींस अल्टीमेटली ये जो एंगल है वो -90 से 90 के बीच में नहीं आने वाला है. Got it? Then now what we will do, or you can say what we can do. By using trigonometry, if we observe that sin x, then we can write, if I am saying that 180 plus x, what is the meaning of sin 180 plus x? It is in third quadrant. In third quadrant, sin 180 plus theta is become minus sin theta, and we introduce minus here. Then you can say now it is the sin theta. Means one method can be arises that sin x can be written as sin of minus pi minus x. Yes, and or you can say sin minus 3 pi minus x, or you can say sin -5 pi minus x and so on. Okay, now
if sin x equals to sin 2 pi plus x, then it is okay. Yes, it is also okay. Then it is sin 4 pi plus x, it is also okay. Then sin 6 pi plus x. Means up to now there are 4 category. Okay, 2 category you can see. If I can draw this line and see here. If we draw the lines and understand the categories, got it, for the sine inverse sin x. Till now there are 2 categories. First one, listen, first one is the pi minus x, 3 pi minus x, 5 pi minus x, means 180 minus theta, 270, or you can say 180 into 3 minus theta, 180 into 5 minus theta, this type. And this one is minus x minus 2 pi, here x minus 4 pi, and in this quadrant 2 pi plus x, 4 pi plus x, and in this quadrant this is minus pi plus x, minus 3 pi plus x, minus 5 pi plus x. Actually, they are the 4 types of category in which you can say sin theta can be obtained. Means all these system are equal to, or you can say converted into sin x. Means sin x can be written as we know, sin x can be written as sin 180 minus x. Everybody know this. Sin 180 minus theta is sin theta, and sine of minus 180 plus theta, it is also become sin theta because the minus comes out. It is sin 180 plus theta. In third quadrant, sin theta is negative. That minus and this minus become positive. It becomes sin x. Yes or no? Means sin x can equal to sine of minus pi plus x also. Got it? And you can see here sin x is equals to sine 2 pi plus x, because it is nothing. It is 360 plus x, or you can say theta. Got it? And you can say easily sine 4 pi plus x also. And this system, in this, as we know, sin x can be written as sin x minus 2 pi, because as we discussed earlier that it is the you can take the minus common and minus comes out, then it is the sin 2 pi minus x. And what is the 2 pi minus theta? It is again minus sin theta, means minus minus plus. Means these are the 4 systems in which you can convert the sin x into sin x. Got it? Now what is the main logic? If angle is positive, then we can use this system or this system, because positive angle, then pi minus positive, it can be reduces to, and it is capable to reach pi by 2 to minus pi by 2 to plus pi by 2. एक्चुअली जब कोई पॉजिटिव नंबर माइनस करोगे तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना इसमें से पाई से, तो वहां हम वो पहुंच सकते हैं. ऐसे सेम प्रोसेस से कोई पॉजिटिव नंबर है, जैसे मान लो 3 पाई ले लिया, तो 3 पाई माइनस 2 पाई कर रहा हूं मैं. अल्टीमेटली ये सेटअप कहां जा रहा है? रिड्यूस हो रहा है. तो पॉजिटिव कैटेगरी में जब भी एंगल होगा तब हम इन दोनों का यूज कर लेंगे. जब भी नेगेटिव कैटेगरी का नंबर आए, सपोज जैसे माइनस कुछ आया, तो
तो माइनस आके यदि इसमें रख दोगे माइनस, तो अल्टीमेटली ये माइनस जो है वो माइनस माइनस प्लस कर देगा। मीन्स उसको मुझे माइनस वाले एंगल्स को यहां से मैं रिड्यूस कर सकता हूं इस जगह से। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया, साइन इनवर्स साइन ऑफ -5, suppose, then what is your answer? As we know, by this system, here is the 2 pi plus x and here is the minus pi minus x, you can see this type, है ना। और हम लोग यहाँ देखेंगे -3 pi minus x भी होगा। यहाँ पर अपने पास pi minus x था और यहाँ पे x minus 2 pi था। तो इन चारों को यदि हम लोग डिस्कस करें और समझें कि इसके लिए कौन सा फीजिबल है, तो साइन -5 के लिए जो फीजिबल सिस्टम है ना, फीजिबल मतलब फीजिबल का सेंस क्या है, अल्टीमेटली फीजिबल का सेंस यही है कि अपने पास जो -5 है ना, इसको हमें रिड्यूस करना है और इसको -1.57 से 1.57 पहुंचाना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फीजिबिलिटी, गॉट इट। अब -5 को कैसे रिड्यूस करेंगे? अब सपोज यहाँ -5 रख दिया तो इंक्रीज कर जाएगा ना, 5 माइनस ऑफ -5 हो जाएगा। अब -5 को सपोज मैंने रखा 2 पाई प्लस x के प्लेस पे यहाँ पे, तो इट इज द 2 पाई -5 एंड कैलकुलेट द 2 पाई। 2 पाई इज द 3.14 अप्रोक्सीमेट इंटू 2, 28.6 एंड -5 करेंगे तो ये अपनी रेंज में आ गया। मीन्स यू कैन सी साइन वर्स साइन -5 इज इक्वल टू 2 पाई -5, गॉट इट। तो बेसिकली जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस चार्ट को हम लोग देख रहे थे, ये वाला, यस दिस फिगर है ना। तो उस फिगर की इंपॉर्टेंस ये है कि हम यदि इस चार्ट को मेमोराइज करें ना, तो हमें एक तो इसके ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि ग्राफ में बताने वाला हूँ, लेकिन उसके ग्राफ से बच जाएंगे। फिर मैं तुम्हें एक प्रोसेस बताऊं कि मुझे करना क्या होता है। सपोज मुझे कोई भी बड़ा एंगल निकालना है, उसका साइन निकालना है। एक बार एक काम करते हैं, पेन चेंज करते हैं अपना। सपोज मेरे पास एक एंगल आया और एंगल ये आया, देखिए साइन इनवर्स साइन 40, दैट इट, ये आ गया। अब मुझे दिमाग क्या लगाना है इसमें? मुझे दिमाग लगाना है 40 के पास पहुंचना है मुझे। अब मेरे पास यदि वो डायग्राम का सारा फिगर रखा हुआ है कि यहाँ पर मेरे पास पाई माइनस एक्स टाइप का सेटअप है, यहाँ पे मेरे पास 2 पाई प्लस एक्स का सेटअप है, और यहाँ पे मुझे x माइनस 2 पाई वाला सेटअप है, और मुझे पॉजिटिव है तो इन दोनों सेटअप में काम करना है। पहली बात, पाई का मतलब होता है 3.14, तो अप्रोक्सीमेट 3 ले लेता हूँ सपोज। तो 3 से इसको डिवाइड करूंगा मैं, तो 3 से डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट में पाई का जो मल्टीपल है उस मल्टीपल पे पहुंचना चाहता हूँ। मीन्स इट इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, लाइक दिस, गॉट इट। तो 3 से अप्रोक्सीमेट डिवाइड करोगे तो सपोज 39 टाइम चला गया। मीन्स ये कंफर्म हो रहा है कि 13 पाई के आसपास जो है, 14 पाई के आसपास जो है, वहां पर ये काम चल रहा है। या 13 पाई तो है ही अपने पास, और यू कैन से 12 पाई भी है। इतने सारे पाई ले लो आप। अब यहाँ पे देखो 13 पाई वाला केस तो यहाँ बनेगा, क्योंकि सारे ऑड वाले केसेस यहाँ बन रहे हैं। मीन्स एक तो आंसर हो सकता है कि भाई कोई बताए कि 13 पाई माइनस 40 वाला प्रोग्राम हो जाए, क्योंकि इसके पास पाई आ रहा है, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, ऐसे आ रहे हैं ना। तो 13 पाई माइनस 40 को चेक कर लेते हैं, और एक फिर ज्यादा होगा, मैं 40 माइनस 14 पाई को चेक कर लूंगा। जो भी सेटअप मेरा उसके अंदर आएगा वो उसका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, 13 इंटू पाई मीन्स 3.14 इंटू 13। नाउ सॉल्व इट। 13 4 जा 52, 5 13 बन जा 13, 18 1 और 40 मीन्स इट इज 40.82। 40.82 minus 13 पाई मीन्स यू कैन से 13 हो गया 40.82 minus 40. This comes about 0.82 which lies between
minus 1.57 to 1.57. Means we can easily say that sine inverse sine 40 is 13 pi minus 40. This is the main reason. Sine inverse sine 40 equals to 13 pi minus 40. This is our answer. Correct?